Good morning, everyone. Today we will discuss an important topic of educational psychology factors affecting forgetting and strategies to minimize forgetting. We all forget things in daily life like names, formulas, phone numbers, or answers during exams. But why does forgetting happen? In psychology, forgetting is a natural process in which learned information cannot be recalled properly. In this topic, we will understand the major factors that cause forgetting and the effective strategies that help to reduce forgetting with the help of real life examples. So, let's start the topic. Forgetting is a natural psychological process in which a person is unable to recall and recognize previously learned information. It is a common part of memory and learning. Forgetting may occur due to weakness of memory traces, lack of practice, interference, emotional disturbances और failure in retrieval. फॉरगेटिंग जो है एक नेचुरल साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो है इंसान पहले से सीखी हुई इन्फॉर्मेशन को रिकॉल या रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। ये मेमोरी और लर्निंग का एक नॉर्मल पार्ट है। कभी कभी हम इन्फॉर्मेशन को कम्प्लीटली भूल जाते हैं और कभी इन्फॉर्मेशन मेमोरी में होती है बट हमें याद नहीं आती है। फॉरगेटिंग के कई रीज़न होते हैं जैसे मेमोरी ट्रेसेस का वीक होना, रिवीजन की कमी, इंटरफेरेंस, स्ट्रेस या रिट्राइवल फेलियर। In educational psychology, understanding the factors affecting forgetting and the strategies to reduce it is very important because it helps teachers to improve learning and retention among students. Educational psychology में forgetting को समझना बहुत important है क्योंकि इससे टीचर जो है स्टूडेंट की लर्निंग और मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। Next है factors affecting forgetting. Many factors influence forgetting. Some are related to the learner while other are connected with the learning situations. बहुत से factors हैं जो forgetting को influence करते हैं। कुछ जो है वो learner से related है और कुछ जो है वो learning situation से। तो first point है passage of time. One major factor of forgetting is the passage of time. According to trace decay theory, memory traces gradually become weak if they are not used or revised regularly. When information remains unused for a long period, it fades from memory. जैसे जैसे टाइम पास होता है मेमोरी ट्रेसेस जो है वीक होने लगते हैं। अगर लर्न इन्फॉर्मेशन को यूज़ या रिवाइज ना करें तो वो धीरे धीरे क्या है फेड हो जाती है और ये आइडिया जो है ट्रेस डीके थ्योरी में दिया गया है। For example, a student may remember a poem immediately after learning it, but after several months without revision, the poem may be forgotten. कि आपने क्या है एक पोइम याद की, ठीक है, अभी वो आपको याद है बट अगर आप उसको कुछ महीनों तक रिवाइज नहीं करेंगे तो आप क्या है उसे भूल जाएंगे। तो एजुकेशनल इम्पोर्टेंस क्या है? टीचर शुड इनकरेज कॉन्टिन्यूअस रिवीजन एंड प्रैक्टिस सो दैट मेमोरी ट्रेसेस रिमेन स्ट्रॉन्ग। तो टीचर्स को क्या है रेगुलर रिवीजन और रिकैप करवाना चाहिए ताकि जो है मेमोरी ट्रेसेस जो है वो स्ट्रॉन्ग बन सके। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ प्रैक्टिस और रिवीजन। लर्निंग विदाउट रिपीटिशन ऑफन लीड्स टू फॉरगेटिंग। Practice strengthens memory and helps transfer information into long-term memory. If revision is absent, learned material become weak and difficult to recall. Practice और repetition जो है memory को strong बनाती है। जब हम किसी चीज़ की रिवीजन नहीं करते हैं तो वो information क्या है वीक पड़ जाती है, हम क्या है उसे भूल जाते हैं और उसे रिकॉल करना जो है हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। For example, students often forget mathematical formulas after exams because they stop practicing them. कि स्टूडेंट क्या है एग्ज़ाम के बाद जो है मैथ के फॉर्मूलाज को क्यों भूल जाते हैं क्योंकि वो क्या है अब उसकी डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं।
तो वो क्या है, उसे भूल जाते हैं। एजुकेशनल इम्पोर्टेंस क्या है? रेगुलर होमवर्क, असाइनमेंट्स एंड रिवीजन टेस्ट हेल्प्स रिड्यूस फॉरगेटिंग। अगर आप क्या है रेगुलर होमवर्क या वीकली टेस्ट, असाइनमेंट या रिवीजन क्लासेस होगी तो फॉरगेटिंग को क्या है, हम रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरफेरेंस ऑफ लर्निंग। समटाइम्स वन टाइप ऑफ लर्निंग इंटरफेयर विद अनदर लर्निंग, दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। कभी क्या होता है कि एक लर्निंग जो है दूसरी लर्निंग को डिस्टर्ब करती है, इसे क्या है, इंटरफेरेंस कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। फर्स्ट है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ओल्ड लर्निंग इंटरफेयर्स विद न्यू लर्निंग, कि पुरानी लर्निंग जो है न्यू लर्निंग को डिस्टर्ब करती है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कॉन्टिन्यूअस राइटिंग एन ओल्ड पासवर्ड इवन आफ्टर चेंजिंग इट टू अ न्यू वन, कि क्या है कि एक पर्सन है, उसने अपने मोबाइल का पासवर्ड जो है चेंज कर दिया है, पर उसने जो पुराना पासवर्ड है वो कई सालों तक यूज़ किया है। तो फिर क्या है, जब भी वो क्या है पासवर्ड एंटर कर रहे हैं तो वो बार बार क्या है ओल्ड पासवर्ड ही टाइप हो जा रहा है। तो ये क्या है, ओल्ड लर्निंग जो है वो न्यू को डिस्टर्ब कर रही है। इसी तरह अगर किसी को या पुरानी बाइक चलाने की हैबिट की वजह से क्या है न्यू स्कूटर का कंट्रोल जो है इनिशियली कंफ्यूजिंग लगता है, तो इसमें भी क्या है ओल्ड लर्निंग जो है न्यू को डिस्टर्ब कर रही है। सेकंड टाइप है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। न्यू लर्निंग इंटरफेयर विद ओल्ड लर्निंग, कि न्यू लर्निंग जो है वो पुरानी लर्निंग को डिस्टर्ब कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर लर्निंग अ न्यू फोन नंबर अ पर्सन मे फॉरगेट द ओल्ड, कि न्यू नंबर याद करने के बाद क्या है ओल्ड नंबर को भूल जाना। या फिर जब व्हाट्सएप का न्यू अपडेट आता है तो पुराने बटन या मेन्यू याद नहीं रहते, तो इसमें क्या है कि जो हमारी न्यू लर्निंग है वो ओल्ड लर्निंग को डिस्टर्ब कर रही है। एजुकेशनल इम्पोर्टेंस, टीचर शुड अवॉइड टीचिंग वेरी सिमिलर सब्जेक्ट कॉन्टिन्यूसली विदाउट ब्रेक, कि टीचर को क्या है सिमिलर टॉपिक या सब्जेक्ट को कॉन्टिन्यूसली नहीं पढ़ाना चाहिए बिना ब्रेक के, वरना क्या है सब कुछ जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो क्या है मिक्स हो जाएगी और न्यू लर्निंग जो है वो ओल्ड को डिस्टर्ब करेगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लैक ऑफ अटेंशन एंड इंटरेस्ट। अटेंशन इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर लर्निंग। If a learner is distracted or uninterested, the information is not encoded properly in memory. Without concentration, retention becomes weak. कि अगर लर्निंग के टाइम कंसंट्रेशन नहीं हो तो इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली ब्रेन में स्टोर नहीं होती। इंटरेस्ट और अटेंशन जो है मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन ड्यूरिंग क्लास may fail to remember the lecture, कि क्लास में लेक्चर चल रहा हो और जो स्टूडेंट है वो मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है तो बाद में लेक्चर क्या है याद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ध्यान वहाँ पे नहीं है। या मूवी देखते वक्त अगर माइंड किसी टेंशन में हो तो स्टोरी समझ नहीं आती है। तो क्या है कि जिस टाइम हम कोई काम कर रहे हैं या कोई लर्निंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो हमारा पूरा ध्यान क्या है वहीं पर होना चाहिए। एजुकेशनल इम्पोर्टेंस क्या है? Teachers should use interesting teaching methods and engaging classroom activities. टीचर को जो है इंटरेस्टिंग टीचिंग मेथड्स, एक्टिविटीज़ जैसे स्टोरी टेलिंग हो गई, डिस्कशन हो गई, डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है वो यूज़ करनी चाहिए ताकि जो है बच्चे का जो अटेंशन है और वो इंटरेस्ट है वो क्लास में बना रहे। नेक्स्ट है इमोशनल फैक्टर्स। स्ट्रॉन्ग इमोशंस सच एज फियर, स्ट्रेस, anxiety, anger, or depression negatively affects memory. Emotional disturbances reduce concentration and retrieval ability. स्ट्रेस हो गया, फियर, एंजाइटी, एंगर या डिप्रेशन मेमोरी को जो है नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। ये जो है स्ट्रॉन्ग इमोशंस है जो कंसंट्रेशन और रिकॉल पावर दोनों को क्या है कम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट मे फॉरगेट आंसर्स ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ नर्वसनेस एंड फियर, कि कोई बच्चा है कि वो क्या है एग्जामिनेशन हॉल में पेपर अटेम्प्ट करते हुए वो आंसर भूल जाता है। क्यों? ड्यू टू नर्वसनेस एंड फियर, कि डर की वजह से क्या है वो आंसर ही भूल गया। तो एजुकेशनल इम्पोर्टेंस क्या है?
टीचर्स शुड मेंटेन अ पॉजिटिव एंड स्ट्रेस फ्री क्लासरूम इन्वायरमेंट, कि टीचर को चाहिए कि वो पॉजिटिव और स्ट्रेस फ्री क्लासरूम इन्वायरमेंट मेंटेन करे। नेक्स्ट है पुअर हेल्थ एंड फैटिग। फिजिकल हेल्थ ग्रेटली अफेक्ट्स मेमोरी, इलनेस, वीकनेस, लैक ऑफ स्लीप एंड टायर्डनेस रिड्यूस मेंटल एफिशिएंसी एंड कंसंट्रेशन, कि पुअर हेल्थ आपकी वीकनेस, लैक ऑफ स्लीप और टायर्डनेस मेमोरी को क्या है हमारी वीक बनाते हैं। ब्रेन को जो है प्रॉपर रेस्ट और न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हु स्टडी द होल नाइट बिफोर एग्जाम ऑफन फॉरगेट इन्फॉर्मेशन क्विकली ड्यू टू फैटिग, कि अगर कोई बच्चा है पूरी रात जागकर स्टडी कर रहा है एग्ज़ाम से एक दिन पहले, तो क्या है एग्ज़ाम के टाइम में कन्फ्यूजन के द्वारा क्या है फॉरगेटिंग हो जाती है, मतलब वो क्या है थकान की वजह से है वो सारा आंसर जो है वो भूल जाते हैं। तो या इलनेस के टाइम पढ़ाई पर फोकस करना जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वो क्या है हमारी लर्निंग को अफेक्ट करती है। एजुकेशनल इम्पोर्टेंस क्या है, स्टूडेंट शुड मेंटेन प्रॉपर स्लीप, न्यूट्रिशन एंड फिजिकल हेल्थ, कि स्टूडेंट को चाहिए कि वो प्रॉपर स्लीप, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, रेस्ट को मेंटेन करें, वो उसके लिए क्या है बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ रिट्राइबल क्यूज, कि सम टाइम इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन मेमोरी बट कैन नॉट बी रिकॉल्ड बिकॉज प्रॉपर रिट्राइबल क्यूज आर मिसिंग, दिस इज नोन एज रिट्राइबल फेलियर, कि कभी कभी क्या होता है जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी मेमोरी में होती है बट करेक्ट क्यूज ना मिलने की वजह से क्या है वो रिकॉल नहीं हो पाती है, इसे क्या है हम रिट्राइबल फेलियर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन मे रिकॉग्नाइज अ क्लासमेट्स फेस बट फेल टू रिमेंबर द नेम, कि क्या होता है कभी कभी हमें किसी का फेस ऐसा लगता है कि हम उसे जानते हैं कि वो पर्सन क्या है जान पहचान का, बट हमें क्या है उसका नाम याद नहीं आता है, तो ये क्या है रिट्राइबल फेलियर। एजुकेशनल इम्पोर्टेंस क्या है, टीचर शुड यूज़ क्यूज, एसोसिएशंस एंड एग्जाम्पल्स ड्यूरिंग टीचिंग, कि टीचर को क्या है टीचिंग के दौरान क्यूज, एग्जाम्पल्स, एसोसिएशन इनको यूज़ करना चाहिए, ताकि जब वो है स्टूडेंट जो है वो उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करे तो वो क्यूज़ के द्वारा क्या है वो उसके लिए ईजी हो जाए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मीनिंगलेसनेस ऑफ मटेरियल। मीनिंगलेस और डिफ़िकल्ट मटेरियल इज़ फॉरगॉटन मोर इजीली देन मीनिंगफुल मटेरियल। मीनिंगलेस इन्फॉर्मेशन जो है मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन के कंपैरिजन में जल्दी हम भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रैंडम लेटर्स लाइक XQZT are harder to remember than meaningful words like apple, कि कोई रैंडम लेटर है जैसे XQZT, इसको याद करना डिफ़िकल्ट होता है बट अगर हमें एप्पल याद करना है तो वो हमारे लिए क्या है ईजी। तो मीनिंगलेस इन्फॉर्मेशन और डिफ़िकल्ट मटेरियल जो है वो जल्दी हम भूल जाते हैं और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जो है हमें याद रहती है। एजुकेशनल इम्पोर्टेंस क्या है, टीचर शुड प्रेजेंट लर्निंग मटेरियल इन अ मीनिंगफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर, कि टीचर्स को जो है टॉपिक को मीनिंगफुल और रिलेटेबल वे में क्या है एक्सप्लेन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ओवर लर्निंग एंड मेंटल ओवरलोड। व्हेन स्टूडेंट्स लर्न टू मच इंफॉर्मेशन continuously without rest, the brain becomes overloaded. This reduces retention and increases forgetting, कि कॉन्टीन्यूस स्टडी विदाउट ब्रेक्स ब्रेन को क्या है ओवरलोड कर देती है। मेंटल फैटिग जो है हमारी फॉरगेटिंग को इंक्रीज करती है। फॉर एग्जाम्पल स्टडिंग कॉन्टीन्यूसली फॉर मैनी आवर्स विदाउट ब्रेक रिड्यूसेस मेमोरी एफिशिएंसी, कि अगर हम लगातार 6-7 घंटे कॉन्टीन्यूसली स्टडी कर रहे हैं तो और क्या है बिना ब्रेक के, तो स्टूडेंट को भी कुछ भी प्रॉपरली क्या है याद नहीं रहेगा। एजुकेशनल इम्पोर्टेंस क्या है, प्रॉपर रेस्ट इंटरवल्स शुड बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग स्टडी सेशन, कि टीचर और स्टूडेंट को प्रॉपर ब्रेक लेना चाहिए स्टडी सेशन के टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन इम्प्रूव्स लर्निंग एंड रिटेंशन, विदाउट इंटरेस्ट और पर्पस स्टूडेंट्स फॉरगेट इजीली, कि मोटिवेशन जो है लर्निंग को मीनिंगफुल बनाता है और इंटरेस्ट और गोल ना हो तो इन्फॉर्मेशन क्या है हम जल्दी भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट हु स्टडीज ओनली फॉर एग्जाम
मे फॉरगेट टॉपिक्स सून आफ्टर द एग्जामिनेशन, कि कोई बच्चा है वो इसलिए पढ़ रहा है कि सिर्फ उसे क्या है एग्ज़ाम में वो चीज़ अटैम्प्ट करनी है, तो वो एग्ज़ाम के बाद क्या है वो उसे ईजीली क्या है भूल जाएगा। लेकिन जिस टॉपिक में जेन्युइन इंटरेस्ट हो और वो क्या है अच्छे से उसकी तैयारी की है, तो वो क्या है हमें लंबे टाइम तक याद रहती है। एजुकेशनल इम्पोर्टेंस, टीचर्स शुड मोटिवेट स्टूडेंट्स बाय कनेक्टिंग लर्निंग विद रियल लाइफ, कि टीचर को क्या है लर्निंग को रियल लाइफ से कनेक्ट करना चाहिए। इससे क्या है उससे बच्चे का उसमें इंटरेस्ट होगा और वो चीज़ क्या है उसे लंबे टाइम तक याद रहेगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग कैन बी रिड्यूस थ्रू प्रॉपर लर्निंग टेक्निक्स एंड हेल्दी हैबिट्स। फॉरगेटिंग को जो है कम किया जा सकता है प्रॉपर लर्निंग टेक्निक से और हेल्दी हैबिट से। तो फर्स्ट पॉइंट है रेगुलर रिवीजन। रिवीजन स्ट्रेंथन्स memory traces and improves retention. Frequent review prevents learned material from fading, कि रेगुलर रिवीजन जो है हमारी मेमोरी ट्रेसेस को है वो स्ट्रॉन्ग बनाती है, और अगर हम बार बार रिवाइज करते हैं तो लर्न मटेरियल को हम भूलते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेली रिवीजन ऑफ क्लास नोट्स हेल्प स्टूडेंट टू रिमेंबर कॉन्सेप्ट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर जो स्टूडेंट है डेली रिवीजन करते हैं क्लास नोट्स की, तो वो कॉन्सेप्ट जो है उन्हें लंबे टाइम तक याद रहते हैं। और एजुकेशनल वैल्यू क्या है, टीचर शुड प्लान पीरियोडिक रिवीजन सेशन, कि टीचर को क्या है पीरियोडिक रिवीजन क्लासेस और रिकैप सेशन जो है यूज़ करने चाहिए, जो बहुत यूज़फुल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस एंड रिपीटिशन। रिपीटेड लर्निंग ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, कि रिपीटेड प्रैक्टिस जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी को हमारी इम्प्रूव करती है। फॉर एग्जाम्पल, रिपीटेड राइटिंग ऑफ स्पेलिंग्स इम्प्रूव मेमोरीज, कि डेली टाइपिंग प्रैक्टिस करने से कीवर्ड जो है हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। और एजुकेशनल वैल्यू क्या है, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस एंड असाइनमेंट्स इम्प्रूव रिटेंशन, कि वर्कशीट की प्रैक्टिस करने से और रिपीटेड एक्सरसाइजेस जो है हमारे क्या है हेल्पफुल होती है हमारी फॉरगेटिंग को रिड्यूस करने में। नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ निमोनिक्स। निमोनिक्स आर मेमोरी एड्स दैट हेल्प इन रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन ईजिली। जो निमोनिक्स होते हैं वो मेमोरी एड्स होते हैं जो रिकॉल को ईजी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विबग्योर फॉर रेनबो कलर्स बोर्डमास इन मैथमेटिक्स। जैसे विबग्योर है उसको हम क्या है रेनबोज के कलर याद करने के लिए यूज़ करते हैं, और बोर्डमास को मैथमेटिकल ऑपरेशंस को याद करने के लिए। और एजुकेशनल वैल्यू क्या है, टीचर्स कैन यूज एक्रोनिम्स, राइम्स एंड डायग्राम्स फॉर बेटर मेमोरी। नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग। मीनिंगफुल लर्निंग इज रिमेंबर्ड लॉन्गर देन रोट मेमोराइजेशन, कि रोट लर्निंग के कंपैरिजन में अगर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग है तो वो ज़्यादा परमानेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी इज़ ईजियर टू रिमेंबर देन मेमोराइजिंग डेफिनेशन ओनली, कि अगर स्टूडेंट जो है ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझते हैं तो वो क्या है उसको ईजिली याद रख सकते हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ डेफिनेशन ही रखते हैं तो क्या है उसे वो जल्दी भूल जाते हैं। और एजुकेशनल वैल्यू क्या है, टीचर शुड फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, कि टीचर को क्या है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एसोसिएशन मेथड। कनेक्टिंग न्यू नॉलेज विद प्रीवियस नॉलेज इम्प्रूव्स रिकॉल। न्यू इन्फॉर्मेशन को ओल्ड नॉलेज या एक्सपीरियंस से कनेक्ट करना एसोसिएशन मेथड कहलाता है। एसोसिएशंस मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं क्योंकि ब्रेन कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन को ईजिली रिकॉल करता है। फॉर एग्जाम्पल, रिलेटिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स विद करंट सिचुएशन हेल्प्स मेमोरी, कि अगर क्या है हम हिस्टोरिकल इवेंट्स को करंट सिचुएशन से रिलेट करेंगे तो वो क्या है हमें इजीली याद रहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे का बर्थडे है वो 15 अगस्त को आता है तो उससे क्या है वो इंडिया के इंडिपेंडेंस डे को क्या है कभी नहीं भूलेगा, उसे याद रहेगा कि इस दिन क्या है भारत आज़ाद हुआ था। उसी तरह अगर किसी न्यू पर्सन का नाम जो है रोज़ हो तो स्टूडेंट उस नाम से क्या है फ्लावर के नेम को कनेक्ट करेगा तो उस नाम को क्या है वो भूलेगा नहीं, उसे याद रहेगा। एजुकेशनल वैल्यू क्या है, टीचर शुड लिंक न्यू टॉपिक्स विद स्टूडेंट्स प्रायर एक्सपीरियंसेस।
टीचर को जो है प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करना, रियल लाइफ एग्जांपल्स देना और कंपैरिजन और एनालॉजीज यूज़ करने आने चाहिए। इनको यूज़ करने से क्या है, लर्निंग परमानेंट और मीनिंगफुल बने। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। फोकस लर्निंग इम्प्रूव्स इनकोडिंग एंड रिटेंशन। कि फोकस लर्निंग से जो है इनकोडिंग और रिटेंशन जो है बेटर होती है। फॉर एग्जाम्पल, स्टडिंग इन अ क्वाइट रूम हेल्प्स बेटर कंसंट्रेशन। कि साइलेंट रूम में स्टडी करने से डिस्ट्रैक्शन जो है वो कम होती है और कॉन्सेप्ट जो है वो जल्दी क्लियर होते हैं। एजुकेशनल वैल्यू क्या है, टीचर शुड मिनिमाइज क्लासरूम डिस्ट्रैक्शन। कि टीचर को जो है क्लासरूम डिस्ट्रैक्शन जो है वो मिनिमाइज करने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस। लर्निंग इन स्मॉल इंटरवल इज़ मोर इफेक्टिव देन कॉन्टीन्यूस लॉन्ग स्टडी सेशन। कि स्मॉल इंटरवल्स में स्टडी करना कॉन्टीन्यूस लॉन्ग स्टडी से जो है वो बेटर होता है। इससे क्या है, स्पेस लर्निंग भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टडिंग 1 hour डेली इज़ बेटर देन स्टडिंग 6 hour कॉन्टीन्यूसली इन 1 day। रोज़ 1 घंटा स्टडी करना एक दिन में 6 घंटे कॉन्टीन्यूस स्टडी से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एजुकेशनल वैल्यू, टीचर शुड इनकरेज स्पेस्ड लर्निंग। कि टीचर को टाइम टेबल और स्पेस रिवीजन इनकरेज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्दी लाइफस्टाइल। गुड हेल्थ सपोर्ट्स बेटर मेमोरी। इंपॉर्टेंट हैबिट्स, प्रॉपर स्लीप, बैलेंस डाइट, फिजिकल एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट। की हेल्दी बॉडी मेमोरी और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करती है। इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट हैबिट्स है वो है प्रॉपर स्लीप, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल, अच्छी स्लीप लेने के बाद नेक्स्ट डे लर्निंग और रिकॉल दोनों ही हमारी बेटर होती है। और एजुकेशनल वैल्यू क्या है, हेल्दी स्टूडेंट्स लर्न एंड रिमेंबर मोर इफेक्टिवली। कि जो हेल्दी स्टूडेंट्स होते हैं एकेडमिकली बेटर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। इंटरेस्टेड लर्नर्स रिटेन इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर टाइम। कि इंटरेस्टेड लर्नर जो है इंफॉर्मेशन को लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन साइंस रिमेंबर एक्सपेरिमेंट्स मोर ईजीली। कि जो बच्चा साइंस में क्या है इंटरेस्टेड है वो एक्सपेरिमेंट्स को क्या है वो ईजीली याद कर लेता है। जैसे जो स्टूडेंट मान लो क्रिकेट में इंटरेस्टेड होते हैं, उन्हें प्लेयर्स के स्टेटस, रिकॉर्ड, स्टार्स, जो उनके स्कोर, वो सब कुछ क्या है इजीली याद रहते हैं। बल्कि जिसको इंटरेस्ट नहीं है उसको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। एजुकेशनल वैल्यू क्या है, टीचर्स शुड यूज़ एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड। कि टीचर को जो है एक्टिविटी बेस्ड और इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड जो है यूज़ करने चाहिए। इससे क्या है, बच्चा पढ़ने के लिए मोटिवेट भी होगा और उसका इंटरेस्ट भी जो है वो बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। चार्ट्स, मॉडल्स, वीडियोस एंड पिक्चर्स इम्प्रूव मेमोरी बाय मेकिंग लर्निंग इंटरेस्टिंग। चार्ट्स, मॉडल, वीडियोस और एनिमेशंस ये जो है लर्निंग को इंटरेस्टिंग और मेमोरेबल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट रिमेंबर द सोलर सिस्टम बेटर थ्रू मॉडल्स एंड एनिमेशंस। कि स्टूडेंट जो है सोलर सिस्टम को बुक से कम और एनिमेशन या मॉडल से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं और उसे लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। और एजुकेशनल वैल्यू क्या है, टीचिंग एड्स मेक लर्निंग परमानेंट एंड मीनिंगफुल। कि ये जो ऑडियो विजुअल एड्स है लर्निंग को परमानेंट और इफेक्टिव बनाते हैं। सो forgetting is a normal part of the memory process, but excessive forgetting affects learning and academic performance. Many factors such as passage of time, interference, lack of attention, emotional disturbance, and poor health contributes to forgetting. कि forgetting जो है memory process का एक normal part है, लेकिन एक्सेसिव फॉरगेटिंग लर्निंग और एकेडमिक परफॉर्मेंस को क्या है अफेक्ट करती है। पैसेज ऑफ टाइम, लैक ऑफ रिवीजन, इंटरफेरेंस, स्ट्रेस, पुअर हेल्थ और लैक ऑफ मोटिवेशन जो है फॉरगेटिंग को इंक्रीज करते हैं। ये जो है इसके मेजर फैक्टर्स हैं।
However, forgetting can be minimized through revision, practice, motivation, concentration, healthy habits, and effective teaching methods. Teachers play an important role in helping students strengthen memory and improve retention through proper educational strategies. कि रेगुलर रिवीजन, प्रैक्टिस, निमोनिक्स, कंसंट्रेशन, हेल्दी लाइफस्टाइल और जो इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड्स है फॉरगेटिंग को काफ़ी हद तक जो है वो रिड्यूस करते हैं. टीचर का जो है इसमें मेन और इम्पॉर्टेंट रोल होता है. स्टूडेंट की मेमोरी और रिटेंशन को इम्प्रूव करने में थ्रू प्रॉपर स्ट्रैटेजीज और सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट टीचर जो है वो की रोल जो है वो प्ले करते हैं. तो क्या है, टीचर के एफर्ट से जो क्या है फॉरगेटिंग को हम क्या है कम कर सकते हैं. सो दिस वॉज अवर टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉरगेटिंग एंड स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज फॉरगेटिंग. I hope now you clearly understood the cause of forgetting and the different ways to reduce it with the help of real life examples. If you found this topic helpful, then do revise it properly because revision is the key to better memory and learning. Thanks for watching.